All right, so welcome to the revision class on internal reconstruction. So in the last class, we had revised amalgamation, and continuing with that unit, there is another chapter in the unit, that is unit 4, which is internal reconstruction. If you remember, I hope you can see my screen. Just let me know you can see the screen. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So there was a term in amalgamation chapter which was known as external reconstruction. So the first thing is, what do you understand by the term internal reconstruction, and how is internal reconstruction different from external reconstruction? So if I talk about external reconstruction, anybody, can you answer within the amalgamation chapter, what do you mean by external reconstruction? I want an answer. Anyone can answer. It's a formation of a brand new company in order to overtake a sick or loss-making company. That's right. So, which means that I'm going to give you here the point of differences between the two, with the help of which I will try to make you understand what is actually internal reconstruction. Okay. So, just give me a second. This will be external reconstruction, as Narayan has given you the meaning of external reconstruction. And the second thing that we're going to start today is internal reconstruction. Like Narayan said, that it is a takeover of a loss-making company. So first question to all of you is, in external reconstruction, is there a liquidation taking place? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, that's correct. Yes, ma'am. That's correct. So that means in external reconstruction, there is a liquidation. While in internal reconstruction, there is no liquidation. Now, what do I mean? I mean, so let's say there is a loss-making company, although in both the cases, the company is a loss-making company. But what is happening in external reconstruction, that you've been making loss for a long time, and now let's say there is another company which is taking you over, and therefore there is this new company which is formed. While what is happening in internal reconstruction is that you are reorganizing your own company. How you're going to reorganize, how you're going to reconstruct is what we are going to know in the next few minutes. So what you will do is you will reorganize the company. Therefore, there is no liquidation. No liquidation will take place in internal reconstruction. That's the first point. So second point is there a formation of a new company in external reconstruction? Anybody? Does a new Yes, company? ma'am. Yes. So in external reconstruction, you're saying that yes, there is a formation of a new company. But now in internal reconstruction, is there any new company which is formed? No, ma'am. No. So because the existing company will continue, वो अपने आप को किसी तरीके से reorganize करेगी. किस तरीके से करेगी ये हम next few minutes में जानेंगे. लेकिन कोई भी new company नहीं बनेगी. So there is no formation in the internal reconstruction. Second point that I'm going to talk about is reduction of capital. If you would note that in external reconstruction, there is too much disturbance. Please, all of you, mute yourself if you don't want to say anything, okay? So that the class can be smooth. So yeah, reduction. In internal reconstruction, there can be, in some cases, we will talk about this point in detail, there can be in some cases reduction of capital. Reduction of capital, which you would have done in corporate law also. What do you mean by reduction of capital? How does it happen? Alteration of articles, etc. That's all the theory of it, which you should have done in corporate law. So there can be an internal reconstruction. When we talk about external reconstruction, there is no reduction in the share capital. And the last point, which is the section, according to which section is it taking place? External reconstruction is taking place according to the section 319 of Companies Act, 2013, and this is taking place according to the Companies Act 66 section, that is Companies Act 2013. Okay, this was the point of theory, or what is the difference. Now I come to a major point. Why are we reorganizing our company internally, and what do I mean by reorganizing our company? So let's say I have been incurring losses for a long time, which means that the balance sheet, the financial statements that you are showing might not be showing the true and fair picture of the company. So true and fair picture you are not able to represent. It also means that not only this,
it means that the assets do not represent the true book value. जो बुक में assets की वैल्यू है वो रिप्रेजेंट नहीं है, वो एक्चुअली रियल वैल्यू नहीं है. डू नॉट रिप्रेजेंट दी बुक, और रादर आई विल से ट्रू बुक वैल्यू. ऐसा भी होगा, क्या होगा कि भाई आपकी लाइबिलिटी ड्यू हो जाएगी, आपके पास पैसा नहीं है उनको पे करने के लिए, तो आपकी ओवर ड्यू हो जाएगी, एक तरह से आउटसाइड लाइबिलिटी. Therefore, ये भी हो सकता है कि जो आपकी शेयर कैपिटल दिखाई जा रही है वो इन्फ्लेटेड है. कैसे? इन शॉर्ट इट मींस दैट आपकी कंपनी लॉस कर रही है बियर बहुत टाइम से, और अब उसको रीऑर्गेनाइज करना पड़ेगा. कैसे रीऑर्गेनाइज करेगी ये हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे जानने के लिए. सो नाउ व्हाट इज और हाउ, what are the methods of internal reconstruction is what we are going to talk about. Internal. Excuse me, ma'am. Yes. बोलो. Ma'am, can you please ask जो कोई भी है इसको please mute करने के लिए. एक मिनट. Yes. भाई कोई और तो नहीं है, मैं चेक ही कर लेती हूँ एक बार सबको. अब तो कर लिया, शायद आशीष था वो, उसने कर लिया म्यूट अपने आप को. Yeah. Now there is no noise. So methods of internal reconstruction. तो मेरी एक लॉस मेकिंग कंपनी है और अब मैं उसे रीऑर्गेनाइज करके जो उसका ट्रू फेयर वैल्यू है वो दिखाना चाहती हूँ. तो जो भी लॉसेस वगैरह हैं उनको इन शॉर्ट राइट ऑफ करूंगी. बेसिकली व्हाट आई विल डू, हाउ विल आई डू इट इज, वी विल सी दैट इन दीज थिंग्स. वन इज गोइंग टू बी द ऑल्टरेशन ऑफ शेयर कैपिटल. फिर से एक्चुअली ये जो एंकर करता है शायद वही आशीष. बेटा क्या हो गया? म्यूट कर लो अपने आप को. आशीष पाल. आशीष पाल. यस. ओके. सो alteration of share capital is going to be one. Second is going to be change in shareholders' right. Next is going to be reduction of share capital. Next is compromise and settlement. I'll explain each one of it, don't worry. And the last is surrender of shares. Surrender of shares मुझे नहीं लगता आज हो पाएगा. I'll try to do others today. I don't know सारे भी हो पाएंगे कि नहीं. तो अब बात करते हैं alteration of share capital. Alteration से जैसा कि आपको बहुत clearly पता चलता है, alteration means modification of share capital. Alteration of share capital means modification of share capital or change of share capital. यही होता है alteration. Modification of share capital. Please note, all of you, please note, alteration is not reduction of share capital. क्योंकि यहाँ देख रहे हो आप दोनों अलग अलग दिए हैं. Alteration अलग जगह दी है, reduction अलग जगह दी है. जब reduction पे आऊंगी तो I'll make you understand how is it different. But right now I'm talking about alteration of share capital, which is modification of share capital. अब मैं अपनी share capital को modify कर कैसे सकती हूँ? So the first way, please mute yourself, all of you, except me. Nobody should be unmute. Okay. Modification में different options जो मेरे पास हैं. एक ऑप्शन है issue of share capital. बहुत simple है, issue of new share capital. इसमें कुछ नया नहीं है. मुझे पेमेंट करनी है, उसके लिए मुझे पैसा चाहिए, मैंने कुछ नई शेयर कैपिटल इशू कर दी. सिंपल एंट्री होती है. एनीबडी कैन यू टेल मी द एंट्री ऑफ इशू ऑफ शेयर कैपिटल प्लीज? Come on. Bank to share application and allotment. That's right. Then share application allotment to share capital. Bilkul. No problem. Share application and then share application. Please mute yourself, all of you. To share capital. Simple है. अब आगे चलते हैं. तो ये तो था मेरा issue of new share capital. अब नई चीज आई कुछ. And that is consolidation of share capital. अब consolidation होता क्या है? अगर आपको याद हो 7th या 8th क्लास में आपने ये वर्ड सुना होगा, consolidation of land reforms, if you remember, consolidation
ऑफ शेयर कैपिटल। मतलब लैंड रिफॉर्म्स की अगर मैं बात करती हूँ, कंसोलिडेशन क्या होता है, छोटे छोटे टुकड़े साथ में करके बड़ा टुकड़ा बना ले लैंड का, एक तरह से इसका मतलब ये होता है बेसिकली। ठीक है, तो अब कंसोलिडेशन का अगर ये मतलब है कि छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके बड़ा बनाना है, तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर कैपिटल का क्या मतलब होगा? एक सेकंड, पीपल वांट टू एंटर द क्लास, जस्ट या if that is what consolidation means, then can anybody tell me what is consolidation of share capital? कोई, मैंने आपको आइडिया दे दिया, लैंड छोटे छोटे पीसेस को मिला के बड़े पीस करने हैं। अब मैं शेयर कैपिटल को कंसोलिडेट कर रही हूँ, ये कह रही हूँ मैं। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट यू मीन बाय कंसोलिडेशन? सोचो। मैम स्मॉलर वैल्यू के शेयर्स को मिला के लार्जर वैल्यू के शेयर बनाएंगे। Okay, so let me read out a line for you and tell me if it is consolidation or not. Okay, a company with a share capital of 20 lakh divided into 1 lakh equity shares of 20 each, on which 15 is paid up, decides to consolidate 5 equity shares of 20 each into 1 equity share. 5 equity shares को वो एक equity share बना देगा. That is what consolidation is. I repeat, into 1 equity share of 100 each. मतलब जब मैं कंसोलिडेशन करूंगी तो होगा क्या? पहले लेट मी गिव यू द एंट्री सिंपल टर्म्स में, बहुत सिंपल है, कुछ एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हाउ, आई जस्ट टेल यू वैल्यू, इसके बाद आई एक्सप्लेन। शेयर कैपिटल टू शेयर कैपिटल, क्योंकि देखो शेयर कैपिटल रहेगी, कहीं नहीं जा रही, वही है। 20 लाख की शेयर कैपिटल थी, 20 लाख की रहेगी। पहले मैं ये बोलती हूँ कि भाई शेयर का एक शेयर जो था लेट से 100 रुपए का था, ठीक है। आई रिपीट, लेट प्लीज क्लास, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है, क्या कर रहे हो? म्यूट करो। आशीष, I'm going to remove you now. I'm removing you from the class. मैंने रिमूव कर दिया। कौन है आशीष पाल? है भी कोई तुम्हारी क्लास में बाय द वे? सेक्शन ए बी आंसर करो। आशीष पाल है तुम लोगों की क्लास में कोई? सेक्शन ए एंड बी, इज देयर एनीबडी कॉल्ड आशीष पाल इन योर क्लास? बच्चों बोलो। सैंड्रा? मैम ए में तो नहीं है। सैंड्रा बी में है कोई आशीष पाल? नहीं है। हाँ ठीक है, डिलीट कर दिया, तो इसका मतलब ये कुछ गड़बड़ी था। फाइन, ओके, सो नाउ लेट्स कंटिन्यू। So I was saying consolidation of share capital. So what am I saying here? Share capital 20 लाख की 20 लाख ही रहेगी। Please understand everyone, 20 लाख की 20 लाख ही रहेगी, कोई फर्क नहीं है। फर्क कहाँ है? आपका जो नंबर ऑफ शेयर्स है उसमें फर्क आ जाएगा, और दूसरा जो आपकी नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की होगी उसमें फर्क आ जाएगा। कैसे? I'll just help you know. Give me a minute. So let's say मैं कह रही हूँ, मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल भी ले लेते हैं यहाँ पे, कि मेरे पास 20 लाख के शेयर्स हैं, और रादर आई वुड से 2 लाख के शेयर्स हैं, जो कि लेट्स से 100 रुपए का एक शेयर है, ठीक है, सिंपल। अब आप सुनिए, मैंने क्या बोला था? मैंने कहा था कंसोलिडेशन कर रही हूँ, छोटी छोटी जमीन को इकट्ठे करके बड़ी जमीन बना रही हूँ। तो अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे पास 2 लाख की शेयर हैं, 2 लाख शेयर्स हैं, 100 रुपए का ईच। तो देखो, 2 ही चीजें हो सकती हैं। एक तो ये होगा, ये जो नंबर ऑफ शेयर्स है कंसोलिडेशन की वजह से, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा या घटेगा, मुझे ये जानना है। एनीबडी? मैंने जो एग्जांपल लैंड वाला दिया उसके हिसाब से बताना, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेगा या घटेगा? एनीबडी? मैम, the number of shares will decrease and the value would increase in consolidation. करेक्ट। सो लेट्स से 20,000 हो गए सपोज, एंड विच मीन्स हर शेयर 1000 रुपए का हो गया। दैट इज व्हाट कंसोलिडेशन इज। So consolidation is where the number of shares will go down and the nominal value of each share will increase. I repeat, consolidation of share is where the number of shares will go down, और ऑब्वियस है ऑपोजिट होगा, अगर शेयर्स का नंबर कम हो रहा है तो अपने आप ही नॉमिनल वैल्यू बढ़ जाएगी, नॉमिनल वैल्यू विल इंक्रीज।
अब इसी के हेल्प से, इससे पहले कि कोई डाउट हो अभी मत पूछना, 2 मिनट के लिए रुके रहो, मैं आपको सब डिविजन साथ के साथ समझाऊंगी, उसके बाद आपसे डाउट लूंगी। सब डिविजन में क्या होगा, सब डिविजन में क्या होगा, सब डिविजन में ये होगा, उल्टा हो जाएगा। कैसे? एंट्री वही है, एंट्री सेम है, शेयर कैपिटल 20 लाख की थी, 20 लाख की ही शो होगी, और आपका ये वाला एंट्री जो है यहाँ ले जाती हूँ मैं। पर ये प्लीज ध्यान रखना, जो ये ब्रैकेट में मैं ओल्ड नॉमिनल वैल्यू दे रही हूँ ना, ये आपको एंट्री में भी दिखाना है। एक मिनट, आई विल जस्ट शो यू। ठीक है, तो यही वाला केस ले लेते हैं। लेट्स से आपका 2 लाख के शेयर्स है और 100 है। अब क्या हुआ था कंसोलिडेशन में, क्या हुआ था कि नंबर ऑफ शेयर्स कम हुए थे, तो यहाँ पे इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। मतलब सब डिविजन का क्या मतलब है, एक शेयर के 5 शेयर कर दिए मैंने, हो गया सब डिविजन। दैट मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, so number of shares will increase. Opposite of consolidation is subdivision, which also means automatically opposite, nominal value will decrease. मतलब क्या हुआ, 2 लाख के शेयर्स थे तो मैंने बोला नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज, तो 2 लाख से हो गए 20 लाख के, ठीक है, और 20 लाख के अगर हो गए तो ऑटोमेटिकली नॉमिनल वैल्यू विल डिक्रीज, 100 से हो गए 10 रुपए का एक शेयर। इज इट क्लियर? दैट इज व्हाट सब डिविजन एंड कंसोलिडेशन इज, दैट इज व्हाट इट मींस। कैन आई मूव अहेड? Ma'am, I have a doubt. Yeah. Ma'am, in case of subdivision, if we have shares which are partly paid up, so In both the cases, by the way, दोनों में हो सकता है, कंसोलिडेशन में भी हो सकता है और आपका सब डिविजन में भी हो सकता है, पार्टली पेड हो, तो जो प्रोपोर्शन होगा उसी प्रोपोर्शन में आपके शेयर्स रहेंगे। which means that the face value will remain same in case of partly paid up also. ठीक है, ओके, नाउ लेट्स गो अहेड। सो ऑल्टरेशन कर रहे थे शेयर कैपिटल की, एक थी क्या पता नए इशू कर दें शेयर्स, एक था क्या पता कंसोलिडेशन कर दें, एक था आपका सब डिविजन कर दें। अब 2 रह गए, बहुत ही सिंपल, जो कि है कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक होता है 1 यूनिट, बहुत सारे शेयर्स को मिला के 1 यूनिट आपने स्टॉक का दे दिया। एक सेकेंड, so conversion of shares into stock is what we are doing. So simple. Now आप shares को stock में convert कर रहे हो, which means entry will be share capital to, let's say equity share है तो equity share capital to equity stock. So equity ले लेती हूँ यहाँ पे example के लिए, to equity stock, and the last is opposite of this, that is conversion of stock into share capital. Please note, this is not inventory stock, this is equity stock. मतलब ज्यादा शेयर्स को मिला के एक स्टॉक बना लिया, एक यूनिट बना लिया, इस तरह कन्वर्जन ऑफ स्टॉक इनटू शेयर कैपिटल। तो उल्टा हो जाएगा आपका इक्विटी स्टॉक टू शेयर। This is what alteration is. So point number 1 we have already done. I repeat, within methods of internal reconstruction, पहला मेथड था alteration of share capital, जिसमें कि 5 methods हैं. That is issue of new share capital, conversion of share capital, subdivision, and conversion of stock into capital, share capital, or conversion of capital into stock. That is the alteration. Second point पे आते हैं, which is very simple, change in shareholders' rights. तो जो भी आपके शेयर होल्डर्स हैं, जैसे कि लेट्स से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है कोई आपके, उनको कोई डिविडेंड मिलता है, लेट्स से 10% रेट ऑफ डिविडेंड आपने डिसाइड किया हुआ है। अब देखो है क्या प्रॉब्लम, क्या है प्रॉब्लम, ये है कि भाई लॉस मेकिंग कंपनी है। इट्स लाइक सेइंग एक डील हो रही है, डील ये हो रही है, आप सोचो आप क्रेडिटर हो उस कंपनी के, या आप लेट्स से प्रेफरेंस शेयर होल्डर हो उस कंपनी के। अब आपको पता है ये कंपनी तो बंद हो जाएगी भाई, अब बंद हो जाएगी, ये अपने आप को इंटरनली रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अब ये मुझे जो भी ऑफर देते हैं, या तो मैं वो ऑफर एक्सेप्ट कर लूं, नहीं तो ये तो बंद ही हो जाएगी, मेरे पास 1 रुपया जो आ रहा है वो भी नहीं आएगा। सो ये मैं कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट में समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन यहाँ मैंने चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट में क्यों समझाया कि जैसे प्रेफरेंस शेयर है सपोज फॉर एग्जांपल, उसका राइट क्या है, एक राइट है, वन ऑफ द राइट्स इज कि उसको डिविडेंड मिलेगा। लेट्स से आपने जो प्रेफरेंस शेयर
दिए थे वो 10% वाले थे, तो 10% की जगह अब आपने डिसाइड किया कि भाई हम इससे 10% डिविडेंड देते हैं, इसका राइट चेंज कर देते हैं, 10% से 7% कर देते हैं, तो ऑब्वियसली फर्क तो पड़ेगा, कम देना पड़ेगा, सो लॉस मेकिंग हो, तो दिस इज द डील दैट यू आर डूइंग. सो व्हाट इज हैपनिंग इन चेंज इन शेयर होल्डर्स राइट इज दैट आपके जो भी राइट्स हैं उनमें कुछ वेरिएशंस हो जाती हैं, उनमें कुछ चेंजेस हो जाते हैं. सो जस्ट लाइक द एग्जांपल दैट आई गिव यू, आई विल जस्ट राइट इट फॉर यू. एंट्री क्या होगी, आपके 10% वाले प्रेफरेंस शेयर्स थे, 10% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, और 10 से उन्होंने डिसाइड किया कि डिविडेंड कर देते हैं 7%, तो अब वो बन गए 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल. That's it. This is the simple case of change in shareholders' rights. ठीक है. अब आते हैं थोड़ा सा ट्रिकी है जो अब नेक्स्ट है, that is reduction of share capital, the third point. And please note, I told you in the beginning only, alteration is different than reduction. How we'll see. तो हम आ गए रिडक्शन पे, मतलब मेरी शेयर कैपिटल अब तो आप कम कर दोगे जी. देखो ऊपर जो भी सब डिविजन हुई, कंसोलिडेशन हुई, शेयर कैपिटल तो 20 लाख की 20 लाख ही रही, कुछ रिडक्शन तो हुआ नहीं. ठीक है. So that was change, that was modification, but that was not reduction. The next case that we have is reduction of share capital, जिसमें कि हम शेयर कैपिटल को कर देंगे रिड्यूस. अब इसमें भी हम 2-3 केसेस करते हैं, जिसमें कि पहला केस है आपका रिड्यूसिंग बाय रिफंडिंग द एक्सेस कैपिटल. भाई आपके पास एक्सेस कैपिटल है, ओवर कैपिटलाइजेशन है, तो आपने डिसाइड किया 10 लाख का ओवर कैपिटलाइजेशन है मेरे पास, मैं 10 लाख रिफंड कर देती हूँ. सिंपल सी बात है, अगर 10 लाख रिफंड करूंगी, एंट्री क्या करूंगी, ये पहले मैं पॉइंट बता देती हूँ आपको क्या है. दिस इज रिफंडिंग द एक्सेस कैपिटल. 10 लाख मैंने बोला, आपके केस लिया मैंने, तो मैं एंट्री क्या करूंगी, पहले जो मेरी शेयर कैपिटल थी वो मैंने वापस करनी है शेयर होल्डर को, ये हुआ, और फिर शेयर होल्डर को वो वापस कर दी बैंक अकाउंट. दिस इज व्हाट विल हैपन. सो 10 लाख का अगर एक्सेस है, मैंने 10 लाख का 10 लाख वापस कर दिया. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, दैट इज रिड्यूसिंग द let me just write down for you, liability in respect of uncalled or unpaid amount. Uncalled or unpaid amount. The entry here is सेम है, शेयर कैपिटल है मेरी जो डेबिट हो जाएगी, और शेयर कैपिटल की मेरी क्रेडिट हो जाएगी. ये हो गई टू शेयर कैपिटल किस अमाउंट से, जो मेरा पेड अप अमाउंट है. दिस विल बी बाय द पेड अप अमाउंट. Now the most tricky part that I am coming to of the entire chapter, by the way, which if you have attended the classes also, उसमें भी आपको confusion हुआ होगा. That is the third case जिसमें कि हम डिटेल में 2-3 चीजें करने वाले हैं. अब मेरे पास ऑप्शन है कि मेरी पेड अप कैपिटल कम हो रही है, पेड अप कैपिटल कम हो रही है, इसमें मेरे पास 2 ऑप्शन है. I have 2 options. Just give me a minute. Just a second. Yeah. So the 2 options that I have are these are the 2 options. Let's see. So the first is case 3, जिसमें कि reduction in paid up value only. Please note, reduction in paid up value only. बहुत ध्यान देंगे, ये मेरा फर्स्ट था, reduction in paid up value only. ठीक है. और मेरे पास एक और है, वो क्या है, वो है reduction in both
nominal and paid up value. Reduction in both nominal and paid up value. ठीक है, अब इसको समझना है. Alright. Let's do the first part. पहला है कि भाई खाली पेड अप वैल्यू आपकी जो है रिड्यूस हो रही है. अब अगर मैंने पेड अप वैल्यू रिड्यूस करी तो मैं एक आपके लिए लाइन पढ़ती हूँ और उसको सुनिए ध्यान से, और फिर मुझे बताएंगे एंट्री क्या होगी. ठीक है, फिर हम इसको कोरिलेट करेंगे. Reduction in the paid up value only, it means the nominal value of the share remains the same and only the paid up value is reduced. For example, the shareholders may agree to reduce the paid up capital of 100 per share to paid up value of 10 per share. तो आपके पास 100 रुपए का जो पेड अप शेयर है, 100 रुपए को वो कह रहे हैं रिड्यूस करके 10 रुपए का कर दो. समझ आई? तो मतलब अब आप मुझे ये बताओ, I said 100 share to paid up value of 10 per share. What will be the entry? शेयर कैपिटल में अब आपको शेयर कैपिटल कितने की दिखेगी? 100 की दिखेगी क्या? एनीबडी? क्या 100 की दिखेगी? नहीं, 10 की दिखेगी. ठीक है, yes. अब 10 की दिखाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 100 में से अगर मैं 10 माइनस करती हूँ तो मेरे पास 90 का सैक्रिफाइस है. ये 90 का दिस विल लीड टू द सैक्रिफाइस ऑफ 90, दैट इज द सैक्रिफाइस इज 90 पर शेयर. ठीक है, अब ये जो सैक्रिफाइस है इसको मैं शो कैसे करूंगी? पहली वाली एंट्री में जहां पे पेड अप है, आई विल शो इट, क्योंकि शेयर कैपिटल क्रेडिट होती है, 100 रुपए की क्रेडिट हुई पड़ी है, पर मुझे दिखानी है सिर्फ 10 रुपए की, तो 90 को मुझे डेबिट करनी पड़ेगी, तो शेयर कैपिटल होगी मेरी 90 की डेबिट. अब भाई अब कुछ डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा, डेबिट हुआ है तो क्रेडिट भी करना पड़ेगा. क्या करूंगी? यहां से मैं आती हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट पे, जो कि हम इस चैप्टर में यूज करेंगे बार बार, एंड दैट विल बी द रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट. आई विल टॉक अबाउट इट, जस्ट गिव मी अ मिनट. This will be the reconstruction account. And what is the nature of this account? Anybody? It is just like realization account. If you remember amalgamation, realization nature क्या है? Asset, personal or nominal? बताओ. What is the nature of realization account? क्या हो गया? 11th 12th. Asset account, personal account या nominal account? रियलाइजेशन क्या होता है? नॉमिनल होता है. नॉमिनल होता है. शायद क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है? नॉमिनल होता है. प्रॉफिट एंड लॉस नॉमिनल होता है कि पर्सनल होता है? नॉमिनल होता है. शायद कुछ नहीं होता. हाँ, नॉमिनल होता है. तो सिमिलरली रिकंस्ट्रक्शन भी नॉमिनल होता है. कैसे? इसका मतलब ये है कि मैंने आपको बोला 90 का जो सैक्रिफाइस है ये गया कहाँ? ये गया यहाँ रिकंस्ट्रक्शन में. इसको समझते हैं कैसे, क्यों, क्या मतलब है इसका? मतलब एंट्री क्या की आपने? एक तरह से एंट्री की बाय शेयर कैपिटल, और यहाँ आपने लिखा 90. ठीक है, अगर ये आपका सपोज पीएनएल अकाउंट है, अगर ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट है और मैंने बाय शेयर कैपिटल 90 लिख दिया, इसका मतलब क्या? मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? सिंपल टर्म्स है, मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस? प्रॉफिट. तो मतलब मैं क्या करती हूँ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में? आप समझिए मैं करती क्या हूँ. अभी तक तो रिकंस्ट्रक्शन की बात ही नहीं आई थी, बहुत नॉर्मल सी एंट्रीज थी. अब जो मैं ज्यादा एंट्रीज करने वाली हूँ आगे, उससे मैं ये कोशिश करने वाली हूँ कि लोगों से सैक्रिफाइस करा के, जैसे कि शेयर होल्डर से यहाँ पे 90 रुपए का सैक्रिफाइस करा लिया, ये एक तरह से प्रॉफिट आ गया. ऐसे ही मैं क्रेडिटर से भी सैक्रिफाइस करा दूंगा कि भाई 50,000 तुझे ड्यू है, भाई ऐसा है हमारी कंपनी तो बंद हो जाएगी, हम कर रहे हैं इंटरनली रीऑर्गेनाइज, 50,000 की जगह 25,000 लेके खत्म कर, नहीं तो फिर देख लियो कंपनी अगर लुट गई तो तेरे हाथ 1 रुपया भी नहीं आएगा. तो आप ऐसे समझदार क्रेडिटर 25,000 तो ले लोगे, चलो भाई जो आ रहा है ले लेता हूँ, 25,000 आप कर दोगे सैक्रिफाइस. तो 25,000 जो सैक्रिफाइस करोगे वो एक तरह से कंपनी का हुआ प्रॉफिट हुआ, तो वो कहाँ आया? रिकंस्ट्रक्शन में. सो देयरफॉर जो भी प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन में, और जो लॉसेस आ रहे हैं वो यहाँ आ रहे हैं डेबिट में. ठीक है, तो दिस इज व्हाट विल हैपन. अब आगे जो एंट्रीज है वो इसी उसमें चलेंगी कि रिकंस्ट्रक्शन को आपने डेबिट करना है या क्रेडिट करना है. ठीक है, तो कीप इन माइंड रियलाइजेशन, कीप इन माइंड प्रॉफिट एंड लॉस, कीप इन माइंड द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट्स.
So therefore, this is what the entry will be, share capital to reconstruction. अब क्वेश्चन ये आता है, ये तो तब था जब अगर पेड अप वैल्यू ही रिड्यूस हुई, नॉमिनल वैल्यू तो उतनी ही है. तो अब दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा केस आता है, रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू. रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू. और ये आपको क्वेश्चन में ध्यान देना पड़ेगा बहुत, रिडक्शन के केस में, कि क्या हो रहा है, खाली पेड अप कम हो रही है या पेड अप और नॉमिनल दोनों कम हो रही है. सो नाउ जब नॉमिनल और पेड अप दोनों ही कम हो जाएगी, जब नॉमिनल और पेड अप दोनों ही कम हो जाएगी, तब मैं क्या एंट्री करूंगी, लेट मी शो यू. शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन to share capital. I'll just help you understand this with the help of the previous point only. 100 का था, 100 की नॉमिनल वैल्यू भी 10 हो गई. अब जब 100 की नॉमिनल वैल्यू भी 10 होगी तो क्रेडिट में 10 ही दिखेगा, तो यहाँ 10 दिखेगा, रिकंस्ट्रक्शन में 90 दिखेगा, और ये पूरे का पूरा 100 शेयर कैपिटल में डेबिट कर दूंगी. That is what is happening. Any question? Till now, if there is any question, please ask. Then ही मैं आगे चलूंगी compromise and arrangement पे. एक बार मैम एंट्री एक और बार समझा दीजिए वाली. हाँ जरूर, एक सेकंड. तो मैं ये बोल रही हूँ, दो केसेस है. एक है कि खाली पेड अप वैल्यू चेंज हुई. पहले केस में पेड अप वैल्यू चेंज हुई, 100 रुपए का शेयर था, और वो अब पेड अप जो है उसकी, जो मैं रख रही हूँ वो 10 रुपए रख रही हूँ. जब मैं उसकी 10 रुपए की पेड अप रख रही हूँ तो मैं एंट्री सिंपल कर रही हूँ, जितना भी सैक्रिफाइस है टोटल का टोटल सैक्रिफाइस में रिकंस्ट्रक्शन में डाल रही हूँ 90 रुपए का. लेकिन दूसरे केस में क्या हुआ है, मेरी नॉमिनल वैल्यू और पेड अप वैल्यू दोनों ही जो है, दोनों ही कम हो रही है. अब जब दोनों कम हो रही है तो देखो, रिकंस्ट्रक्शन में तो सैक्रिफाइस 90 का ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, वो बिल्कुल ठीक है. इतनी एंट्री जो शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन की थी वो तो 90 का ही है. लेकिन अब मेरे पास तो शेयर कैपिटल का जो नॉमिनल वैल्यू है 10 रुपए शो होना चाहिए. तो 10 रुपए शो होना चाहिए, तो मैंने उसको क्रेडिट किया 10 रुपए से और डेबिट किया पूरे का पूरा 100. जो पूरे का पूरा 100 रुपया था वो सारा हटा दिया, 100 में से 90 सैक्रिफाइस कर दिया, और 10 रुपए जो है वो मैंने एज शेयर कैपिटल दिखाई. दैट इज व्हाट इन बोथ नॉमिनल एंड पेड वैल्यू. सो आई रिपीट, खाली पेड अप कम हो रही है तो सिंपल शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन. दोनों कम हो रही है, शेयर पेड अप एंड नॉमिनल, तो शेयर कैपिटल टू रिकंस्ट्रक्शन टू शेयर कैपिटल. एनी डाउट? मैम एक डाउट है. हाँ बोलो. मैम ये ऊपर जो केस 2 है, रिड्यूसिंग द लायबिलिटी इन हाँ. रिस्पेक्ट ऑफ अनकॉल्ड और अनपेड अमाउंट. हाँ मैम इसका इफेक्ट एक बार समझा दो, मतलब ये एंट्री समझ नहीं आई. ये मैं क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी. अच्छा ठीक है. वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने एग्जांपल नहीं लिया ना, क्वेश्चन के थ्रू समझाऊंगी. ठीक है. यूजुअली वैसे ये पॉइंट पूछते नहीं है, बट स्टिल मैं समझा दूंगी. ओके. सो ऑलराइट, क्लियर. तो अब स्टार्टिंग से हमने कहा था मेथड्स क्या क्या है. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल. ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल मुझे अब किसी से पूछना पड़ेगा. किससे पूछूं? आकाश आप हो वहां पे? आकाश, unmute yourself. Ashi, are you there? Ashi, Aviral, unmute yourself. Aviral. Yes, ma'am. हाँ, या अविरल, मुझे ये बताओ, ऑल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल में क्या क्या आता है, बस नाम पता करना है मुझे. मैम मॉडिफिकेशन. देखो वो तो मीनिंग है, मॉडिफिकेशन इज द मीनिंग. विद इन मॉडिफिकेशन व्हाट ऑल कम्स, जस्ट टेल मी दैट. अच्छा, जैसे कंसोलिडेशन. हाँ हाँ करेक्ट. सब डिविजन. राइट. और मैम लास्ट वाला भूल गया मैं. कोई बात नहीं. गुड, 2 दे दिए इसने मुझे, और कोई देगा बाकी 3. मेरे पास 3 और हैं. अविरल के बाद गितेश, आई देयर? यस मैम. गितेश, इसके अलावा बता सकते हो? Yes, What ma'am. बोलो. Issue of new share capital, Yes. and then we have ma'am stock बना देते हैं, equity हाँ. stock. ठीक है. और और फिर उल्टा कर वो- देते हैं, स्टॉक को शेयर कैपिटल बना देते हैं. ठीक है, करेक्ट. Next was change in shareholders right, and the next was reduction of share capital that we have already done. So we are coming on the fourth one, that is compromise and settlement. इस अकाउंट को यही रख रही हूँ, जो डालना होगा हम यहाँ डाल देंगे. ठीक है. फोर्थ पे आते हैं, कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट. ये मैंने कॉन्सेप्ट अभी भी समझाया था आपको. पूरा कॉन्सेप्ट इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का इसी पे बेस है.
कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट कि भाई आपने बोला क्रेडिटर को 50,000 ड्यू है, 20,000 ले ले भाई और खत्म कर बात, 30,000 भूल जा, नहीं तो कंपनी तो हो जाएगी बंद और तेरे हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो समझदारी इसी में है, जितना मिल रहा है उतना ले लो। तो मतलब कॉम्प्रोमाइज कर लो, सेटलमेंट कर लो। तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट ही यही है, कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट। तो अब देखते हैं कैसे कैसे टाइप्स के कॉम्प्रोमाइजेस हो सकते हैं। So the compromises that we have, just give me a minute, मैं थोड़ा फाइन फॉन्ट साइज बढ़ा देती हूँ आपके लिए। Yeah, I think this is 4. तो the first is हो सकता है आपको ध्यान होगा इक्विटी शेयर होल्डर्स की क्या क्या राइट है। वन ऑफ द राइट्स ऑफ एन इक्विटी शेयर होल्डर इज कि इट हैज द राइट्स ओवर द रिजर्व्स एंड सरप्लस। जो भी रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड में बच जाते हैं वो सारे के सारे इक्विटी शेयर होल्डर को चले जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स से हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस की बात कर रहे हैं, तो मतलब बेसिकली ऐसी कोई भी एंट्री आपको क्वेश्चन में दी जा सकती है। तो पहला कॉम्प्रोमाइज है व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर गिव्स अप, बोल्ड हटा देते हैं, when equity shareholder gives up their claim to the reserves and accumulated profit. So ये रहा। तो अब एनीबडी, अब आपको देखो पता है जो भी प्रॉफिट है लॉस है वो रिकंस्ट्रक्शन में जाना है, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब क्या कोई बता सकता है अगर इक्विटी शेयर होल्डर गिव अप करेगा रिजर्व्स पे क्लेम तो एंट्री क्या होगी? एनीबडी? रिजर्व अकाउंट Reserves to reconstruction. बोलो बोलो बोलो। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू हाँ। रिकंस्ट्रक्ट। करेक्ट, बिल्कुल ठीक। रिजर्व्स वैसे क्रेडिट होता है, ठीक है। मेरा रिजर्व्स कम हो जाएगा जब वो सैक्रिफाइस हो जाएगा, और रिजर्व्स यहाँ पे इसने बोला टू, मेरे पास ऑप्शन क्या है? एक ही ऑप्शन है, रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, जहाँ पे मेरे जो भी प्रॉफिट होता है। तो ये एक तरह का मेरा प्रॉफिट समझ लो। टेक्निकली प्रॉफिट नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, आई होप यू अंडरस्टैंड, बट इट्स जस्ट दैट कि वो सैक्रिफाइस हो गया तो मेरे पास ये चीज जो है मैं इसे किसी चीज के लिए यूज कर सकता हूँ। So therefore, this is what I'm doing, reserves to reconstruction. That means again यहाँ गया by reserves, यहाँ मैं एंट्री साथ के साथ डाल रही हूँ by reserves, ठीक है। तो हो गया पहला। अब चलते हैं और किसी टाइप की कॉम्प्रोमाइज पे। Second compromise that I have is second compromise, or it can be a settlement also, by the way, appreciation of फिक्स्ड एसेट या करंट एसेट, किसी भी टाइप का एसेट हो सकता है। एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब देखो एप्रिसिएशन है तो बहुत साफ सी बात है, एप्रिसिएशन है तो एसेट डेबिट होगा, जो भी एसेट है, फिक्स्ड एसेट है, करंट एसेट है। सो द एंट्री दैट आई डू इज फिक्स्ड एसेट टू रिकंस्ट्रक्शन। यही होगा, तो एंट्री यहाँ आ जाएगी मेरी बाय फिक्स्ड एसेट्स। हो गया। अब एक चीज और हो सकती है, सेल ऑफ अ फिक्स्ड एसेट। क्या पता मैं भाई पैसे चाहिए या जो भी है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिक्स्ड एसेट को सेल कर देती हूँ। जब मैं फिक्स्ड एसेट को सेल करूंगी तो ऑब्वियसली मेरे पास पैसा आएगा बैंक, और मेरा बिकेगा फिक्स्ड एसेट, और डिपेंडिंग ऑन वेदर मेरे पास प्रॉफिट है या लॉस है, अकॉर्डिंगली वो चला जाएगा रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट में। यहाँ मैं अज्यूम कर रही हूँ प्रॉफिट है तो मैं यहाँ रिकंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ, अदरवाइज जो भी है, whatever is the case, I'll do that. Any doubt till here? Can I go ahead? If there is any doubt, please ask. Just let me know. Can I go ahead? Say go ahead अगर आपको कोई डाउट नहीं है। बोलो तो सही, go ahead. शांति क्या हो गई? नहीं तो डाउट पूछो। Yes, ma'am. Next is settlement of outside liabilities. कौन मुझे छोटा लग रहा है कि आपको दिख नहीं रहा होगा। Settlement of outside liability.
So you have any outside liability that can be sundry creditors, that can be debentures. They may agree to accept less amount. ये तो मैं तब से ही आपको एग्जांपल दे रही हूँ बार-बार कि क्रेडिटर्स या जो भी हैं वो डिसाइड करते हैं कि भाई वो कम अग्री करते हैं कि वो सैक्रिफाइस करेंगे. तो एंट्री मेरी जो भी अमाउंट ऑफ सैक्रिफाइस होगा, तो लेट्स से क्रेडिटर है मेरा, तो मैं क्या करूंगी, क्रेडिटर टू रिकंस्ट्रक्शन. ये मेरी एंट्री होगी क्रेडिटर टू रिकंस्ट्रक्शन, विच मीन्स यहाँ एंट्री यहाँ आई बाय क्रेडिटर हो गई. Next, there can be payment. मैम अमाउंट हाँ. उसमें हाँ, this is the sacrifice amount. क्योंकि sacrifice ही आपका profit होता है ना. यस मैम. Sacrifice amount. मैम सिमिलरली वो असेट्स वाले में क्या अमाउंट आएगा जब अप्रिसिएशन हाँ. इन द वैल्यू हाँ ऑफ हाँ, एसेट में? ये वाला एक सेकंड. जितना भी अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन है, मतलब सपोज 10 लाख का एसेट है, आप उसे अप्रिशिएट कर रहे हो 50% से, तो 5 लाख. ओके मैम. लिख लेती हूँ यहाँ पे अमाउंट ऑफ अप्रिसिएशन. ठीक है. नाउ डी हो गया. ई पार्ट है पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी. कोई पेमेंट कर रहे हो आप सपोज आउटसाइड लायबिलिटी की. अब देखो कोई भी पेमेंट तुम करोगे तो मतलब आपके पास कम हो जाएगा प्रॉफिट जो भी था. Therefore, एक सेकंड. So I have payment of outside liability. Meaning payment of outside liability. So the debenture holder may have to be paid in cash, and they may accept some assets of the company in settlement. तो अगर let's say आप पे कर रहे हो creditors को, suppose आपके कुछ creditors हैं, उनको जो भी पैसा आप पे करोगे वो आ गया आपका बैंक से. हो सकता है आप उन्हें कुछ डिबेंचर्स दे रहे हो तो वो भी आ जाएंगे. जो भी दे रहे हो वो एक नॉर्मल एंट्री है. ठीक है, ये तो पेमेंट कर रही हूँ मैं. लास्ट पॉइंट पे आ गई हूँ मैं कॉम्प्रोमाइज के, बाय द वे ऑल ऑफ यू, विच इज अगेन देयर विल बी फ्यू केसेस एंड देयर विल बी सो मे बी अ फ्यू डाउट्स आल्सो हियर. थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा ये. ई है ऑटो नंबरिंग की वजह से नहीं हो रहा है. या दिस इज द लास्ट वन. प्रेफरेंस डिविडेंड. प्रेफरेंस डिविडेंड में 3 केसेस हैं. पहला केस करते हैं, दैट इज डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेएबल. डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड पेएबल मतलब बैलेंस शीट में आपको दिया हुआ है लेकिन इट हैज बीन सैक्रिफाइस्ड. ठीक है, आई रिपीट, डिविडेंड डिक्लेयर्ड एंड payable given in balance sheet but sacrificed. अब जब सैक्रिफाइस कर दोगे तो मुझे पता है जैसे ही वर्ड सैक्रिफाइस आया मेरे को रिकंस्ट्रक्शन को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, ये पता है मुझे. अब मुझे अगर सैक्रिफाइस में रिकंस्ट्रक्शन यूज करना पड़ेगा, मुझे साइड भी पता है कहाँ एंट्री पास करनी है, इस साइड में. इट्स लाइक अ प्रॉफिट टू मी. सॉरी, एंट्री क्या करूंगी, बाय प्रेफरेंस डिविडेंड पेएबल. यहाँ जाती हूँ वापस. व्हाट आई एम सेइंग इज दैट ये जो भी डिविडेंड पे करना था वो अब पे नहीं होगा, सो मैं सैक्रिफाइस कर रही हूँ. प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपका सैक्रिफाइस कर रहा है, तो एंट्री हुई प्रेफरेंस dividend payable to reconstruction. That's it. This is what is happening. Okay, last 2 cases and then it will become easy. The entire concept will become easy for you. Next is arrears in dividend. हो सकता है कुछ arrears हो. जो आपके arrears in dividend हैं, arrears in dividend it does not appear in the balance sheet. आपको balance sheet में नहीं दिए हुए हैं, but paid now. Arrears in dividend
not in balance sheet but paid now. मतलब मैं इसको पे कर रही हूँ मतलब यहाँ क्या इफेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर. दिस इज व्हाट इज हैपनिंग. मतलब इसकी एंट्री मैंने क्या की, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू रिकंस्ट्रक्शन and finally reconstruction to preference shareholder to bank. Preference shareholder to bank. ठीक है, हो गया. लास्ट है अब and then मैम हाँ एंट्री बोलो क्योंकि मैम बोलो. एंट्री हाँ रिकंस्ट्रक्शन टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर नहीं थी. एक सेकंड सॉरी. हाँ मैंने उल्टा कर दिया. ठीक है, ऊपर था रिकंस्ट्रक्शन. बिल्कुल ठीक है, राइट, यू आर राइट. I have done this wrong. That is reconstruction. Thank you, Sandra. ये है लास्ट केस. डिविडेंड नीदर डिक्लेयर नॉर पेड. क्या होगा उसमें? नीदर डिक्लेयर नॉर पेड. नो एंट्री. यस, नो एंट्री. ठीक है. अब अगर मैं यहाँ अकाउंट देखूं, भाई मैं कोशिश कर रही हूँ इतने सारे लोगों को सैक्रिफाइस करा के यहाँ पे इतना पता नहीं कितना प्रॉफिट जोत रही हूँ, इकट्ठा कर रही हूँ. इसका करूंगी क्या? ये क्यों कर रही हूँ? क्योंकि मेरी एक लॉस मेकिंग कंपनी है. इस लॉस मेकिंग कंपनी में हो सकता है कुछ गुडविल भी हो सकता है कुछ पेटेंट्स भी हो, कॉपीराइट्स भी हो, जो कि सब यूजलेस हो चुका है क्योंकि भाई लॉसेस हो रहे हैं. बहुत सारे डेफर्ड एक्सपेंसेस भी हो जो मैं राइट ऑफ भी नहीं कर पाई आज तक. इतना प्रॉफिट ही नहीं हुआ कि राइट ऑफ कर पाऊं. तो यहाँ ये सब करके मुझे करना क्या है? बाय द वे, मुझे अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइज करना है एंड देयरफॉर मुझे यूटिलाइज करना है अपना रिकंस्ट्रक्शन. कहाँ पे? सीरियसली I will reuse this in writing of, please note, पहले मैं लिख देती हूँ, I'll explain this here. Preliminary expenses, अगर कोई ऑब्वियसली नेगेटिव लॉस है, नेगेटिव P&L, जो कि होगा ही आपके क्वेश्चन में क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है. नेगेटिव P&L, ट्रेडमार्क्स, तो आपके जो भी फिक्टिशियस एसेट्स है, गुडविल, पेटेंट, सब कुछ, ये सब मेरे पास आएगा. तो मतलब मैं किस पे आती हूँ? लास्ट पॉइंट पे. आई थिंक यहाँ पे, आई डोंट नो इफ आई हैव रिटन दैट और नॉट, आई जस्ट चेक. नहीं लिखा है. कॉम्प्रोमाइज एंड सेटलमेंट के बाद एक चीज और जो मैं कर रही हूँ, स्टेप कह सकती हूँ मैं उसको, कि मैंने ये सारे कॉम्प्रोमाइजेस किए क्यों? क्योंकि मुझे ये सारे जो लॉसेस थे राइट ऑफ करने थे. इन शॉर्ट, दैट इज व्हाट आई एम डूइंग. तभी तो मैं अपनी कंपनी को अब नए सिरे से शुरू कर पाऊंगी. So therefore the next last point and with which you will be ready to do a question is utilization of reconstruction account. At this stage reconstruction account would show credit entries जो कि आपने देख लिया on account of sacrifices. ठीक है, and this will be utilized to write off fictitious and intangible assets. Please note all of you, even if in question it is not given that you are supposed to write off the fictitious and intangible assets, you will do it. Unless it is given in the question, do not write off the fictitious and intangible assets. You have to write these off. That is what the entire purpose of this entire activity or deal of internal reconstruction is. Therefore, the last entry that you will pass, which I have already shown you, is reconstruction to preliminary expenses. जो भी आपके क्वेश्चन में होगा, डिपेंड करता है क्या क्या आपके क्वेश्चन में है, इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस में.
to negative surplus, to goodwill, sorry, and to patents, etc., trademarks, etc. ठीक है, as and when question आएगा, we'll discuss it. If there is a question, doubt, please ask. Meanwhile, I'm sending you a question that we'll be starting today. If there is a question, please ask. I'm waiting for your questions. I'll send you the question. कोई डाउट नहीं है? Ready already, everybody? मैम डाउट है एक। हाँ बोलो, फिर बोलो। मैम अगर रिकंस्ट्रक्शन के बाद राइट ऑफ के बाद भी प्रॉफिट बच जाए तो फिर वो कहाँ ट्रांसफर होगा? वेरी गुड। क्लास अटेंड की थी वैसे? पहले ये बताओ, जो मेरी हुई थी। नो मैम। हाँ या नहीं बोलो? नहीं की थी, चलो गुड, अच्छी बात है। नहीं, मेरे को लगा तुम मजे ले रहे हो, तुमने क्लास अटेंड की है, तुम्हें पता है, इसलिए पूछा मैंने। ओके सुनो, तो बेटा गुड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट। तो यहाँ आ जाते हैं। तो ऑब्वियस है, ये मेरे पास प्रॉफिट आ गया और यहाँ पे मेरा क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ी आ रही है आपके हिसाब से, तो मेरा प्रॉफिट बच गया। तो आई विल पास द एंट्री टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा? यस मैम। तो ये एंट्री मैं यहाँ अलग से भी पास कर सकती हूँ या इसी में टू कैपिटल रिजर्व भी डाल सकती हूँ, डिपेंडिंग ऑन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो और अ फ्यू क्वेश्चन आपके पास पहुंच गया होगा। हैव यू रिसीव्ड इट? प्लीज लेट मी नो, यस और नो। आ गया क्वेश्चन बच्चों? क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? Yes, ma'am. All right, read it. You have 5 minutes, all of you. I'll start the question. स्टार्ट करवा दूंगी, बाकी आप घर पे करोगे होमवर्क में, लेकिन स्टार्ट मैं करवा दूंगी, समझा दूंगी। स्टार्ट करिए। Read 5 minutes for reading, and then I'll tell you. When you're done, just let me know, ma'am, we are ready. Then we'll start. Are you ready? हाँ जी, क्लास रेडी? Yes, मैम एक बार पॉइंट नंबर 5 आप रिपीट कर दोगे? जो क्वेश्चन में दिया या इसमें पूछ रहे यस हो? मैम। क्वेश्चन में, हाँ जरूर। Fifth is to allot 15,000 fresh equity shares of 20 each to discharge the remaining trade creditors. ठीक ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। कैन एनीबॉडी टेल मी, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए आपको जो लगता है? प्लीज जस्ट लेट मी नो। एनीवन? पहला स्टेप क्या करना चाहिए? बोलो जी। तो चंदाजा, आपके हिसाब से पहला स्टेप क्या होगा? fully paid up. क्या बेटा, फिर से बोलो। Ma'am, fully paid up. अच्छा, ओके, सो लेट मी जस्ट टेल यू ऑल ऑफ यू, प्लीज नोट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज। यहाँ जो पैराग्राफ लिखा हुआ है ना फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, उसकी लास्ट लाइन पढ़िए। ड्यू टू हैवी लॉसेस द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज अग्रीड। लेट मी टेल यू ऑल ऑफ यू, अगर आप जब क्वेश्चन देखोगे, उसे पढ़ोगे, या तो उसमें बैलेंस शीट दी हुई होगी। अब जैसे इस केस में बैलेंस शीट नहीं दी हुई, इसमें सिर्फ लेजर बैलेंसेस दिए हुए हैं। व्हेनेवर, वैसे तो लेजर बैलेंसेस में, इस लेजर बैलेंसेस में आपको कहीं भी, आपको पता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करना है आपने, आपको पता है हैवी लॉसेस हो रहे हैं, आपको कहीं भी हैवी लॉसेस दिख रहे हैं? कितने लॉसेस हैं क्वेश्चन में मिले कहीं? नेगेटिव सरप्लस कितना है, जरा क्वेश्चन देख के बताएंगे? बोलिए।
बोलिए बेटी। मैम एक प्रोविजनल बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, गिवन नहीं है नेगेटिव लॉस। गिवन नहीं है, जैसे हम ये भी कह सकते हैं, हम उसे प्रोविजनल बैलेंस शीट कह सकते हैं, हम उसे प्रोविजनल ट्रायल बैलेंस कह सकते हैं, हम उसे कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन में अगर बैलेंस शीट नहीं दी है, नेगेटिव सरप्लस नहीं दिया है, तो मुझे वो निकालना पड़ेगा कि मेरा नेगेटिव सरप्लस है कितना। ठीक है, क्योंकि वो होगा ही होगा इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अगर हो रही है। तो उसके लिए मैं अपना कैलकुलेट करती हूँ एंड देयरफॉर आई डू इट बाय, करोगे तो आप ही, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ। तो लेट्स से यहाँ पे हम डेबिट बैलेंसेस लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है, यहाँ डेबिट बैलेंसेस लिखो, वहाँ लिखो, क्रेडिट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कैलकुलेशन ऑफ पीएनएल है, प्रोविजनल बैलेंस शीट के नाम पे बनाओ या फिर आप व्हाट यू कॉल प्रोविजनल ट्रायल बैलेंस के नाम पे बना सकते हो। सो लेट्स से यहाँ है मेरे डेबिट बैलेंसेस, हिंट दे रही हूँ, करना आप नहीं है, मैं सिर्फ बता रही हूँ कैसे करना है। ठीक है, डेबिट बैलेंसेस ये रहे, पहले दो मैं बता रही हूँ कहाँ डाल रही हूँ, फिर उसके बाद आप खुद बनाओगे अपने। तो पहला दिया हुआ है फिक्स्ड एसेट 7 लाख, कहाँ डालूं, यहाँ डालती हूँ, फिक्स्ड एसेट है मेरे 7 लाख। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट 10,000, वो भी मैं यहाँ डाल देती हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है, I hope the concept is clear to you. So all of you please make a provisional balance sheet or a provisional trial balance or show a working note as a calculation of P&L and credit and debit balances को equal करके मुझे difference बताइए किस साइड आ रहा है और वो क्या है, कितना है। Come on, 5 minutes you have, please do it. I want the figure. मैम नेगेटिव सरप्लस 10 लाख। Can you hear me, all of you? Yes ma'am. Yeah, I'm back. I had left by chance. Okay, so yeah. Ma'am, negative surplus 10 lakh. 10 lakh, correct. So that's it. That's it. I'm stopping here right now. ज़्यादा हो जाएगा. ठीक है. So now आपके पास question है. You have the question. आपको entries भी पता है कैसे करनी है. अब आप इसको, आज का homework आपका यही है. आप इस question को solve करने की कोशिश करेंगे, जिसमें क्या करेंगे, आपके पास negative surplus आ गया. आप ये सारी एंट्रीज ट्राई करेंगे, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, एंड तक आप सीआर तक करेंगे। एक और मैं पॉइंट देना चाहती हूँ इसमें, वो ये कि एंट्रीज, जब भी आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन बोल रहे हैं और वो कह रहे हैं जर्नलाइज, तो इसका मतलब ये नहीं है खाली आप जर्नलाइज करोगे, क्योंकि क्या होगा, हो सकता है आपके पास ये, जैसा कि एक बहुत ही, आई डोंट नो किस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि अगर प्रॉफिट बच गया, अगर आप रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट नहीं बनाओगे, क्वेश्चन में बोला नहीं होगा मेक रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, बट यू विल मेक इट इन द वर्किंग नोट्स रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्योंकि वहां से पता चलेगा आपके पास ये कैपिटल रिजर्व बच रहा है कि नहीं बच रहा, बच रहा होगा तो उसकी एडिशनल एंट्री भी होगी। Is it clear, all of you? So can I wind up the class today? Ma'am, बोलो if Sandra. the debit balance is more than the credit balance, then would be partially entry capital we will come to that. We will come to that. There will be a couple of cases in the different questions जहाँ पे बहुत जगह कुछ कुछ दिया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, तो वो उस पे डिपेंड करेगा। Okay, ma'am.
ठीक है, क्योंकि यूजुअली ऐसा होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेक्निकली जब आपने ये स्कीम बनाई होगी, भाई प्रॉफिट थोड़ी करने के लिए हम कर रहे हैं, हम तो ये कर रहे हैं कि भाई ये सारी चीजें हम करें और जिससे कि ये सारे हमारे कॉम्प्रोमाइज होके हमारा जो कैपिटल है इतना आ जाए और हमारे जो है बिजनेस नया ट्रू एंड फेयर वैल्यू में दिख जाए बस, और ठीक ठाक चलने लग जाए और हम प्रॉफिट अर्न करने लग जाए। पर्पस हमारा यहाँ पे प्रॉफिट का है नहीं, पर्पस ये है कि सब लोगों को पे हो जाए जो पेमेंट्स ड्यू हैं, कोई आउटसाइड लायबिलिटी बचे ना और हम अफ्रेश स्टार्ट कर पाए। ठीक है, ओके, Yes, ma'am. so fine. Please try this question. If you'll be able to do it, great. Not able to do it, doesn't matter, we'll discuss it. All right, so I guess I stop the class here now. Fine, bye bye.